Hello students, welcome to my channel Education Times, and today we are going to read the first chapter of the textbook Beehive from class 9th. The chapter name is The Fun They Had. It means the fun they had done. Before we go through the whole story line by line, I should tell you all about its summary. This story is about a girl, Maggie, who is 11 years old, living with her mother and elder brother Tommy, who is of 13th. Maggie hates school as her school in her house and her teacher is a robot, which symbolizes how the school will be in future. Suddenly, her brother Tommy got a real book one day, and Maggie was amazed to know that the book was about school, and she came to know how the school and education system was centuries ago. She had been thinking about that old kind of school continuously since she came to know about that when teachers were men instead of robots. And in spite of having school in the same house in Maggie's time, all the kids of past went to the special building where they learned and did fun together. She thought about the fun they had. Now we will continue it from our book line by line in Hindi. Means ऐसा enjoyment जो उन्होंने किया था. Before you read, I must tell you about the story. It is the story about future. Means ये story future के बारे में है कि फ्यूचर में हमारे स्कूल्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम्स कैसे होंगे. क्या हम लोग कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करेंगे, हमारा वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे और मूविंग ई टेक्स्ट. मीन्स ऐसे टेक्स्ट जो स्क्रीन पे मूव करते रहेंगे, ना कि बुक होंगे. Maggie even wrote about it that night in her diary. Margie is the protagonist of this story. Protagonist means the main character of the story. Means ये story इसी protagonist के around revolve होगा. तो ये कह रहा है कि मागी ने इस बारे में उसी रात में अपनी डायरी में लिखा था. On the page headed 17th May 2157. और उस पेज पे उसके डायरी में जिसमें उसने इस बारे में लिखा था, उसके सबसे ऊपर हेड पर उसका डेट था जो कि 17th मई 2157 था. मीन्स ऑब्वियसली ये फ्यूचर की स्टोरी है. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. वो लिखी कि आज टॉमी को एक नया बुक मिला, एक रियल बुक, एक्चुअल बुक. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक और ये बहुत ज़्यादा पुराना बुक था. Maggie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मागी बताती है कि एक बार उसके दादाजी ने उसे बताया था कि जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उनसे कहा था कि एक ऐसा टाइम था जब सारे स्टोरीज़ पेपर पे प्रिंट हुआ करते थे. मीन्स मागी के दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक ऐसा टाइम था जब
पेपर्स पे स्टोरीज प्रिंट होते थे. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. On a screen, you know. They turned the pages. Here they is used for Margie and Tommy. So, वो पेज को पलटते हैं और उन्हें पेजेस जो हैं वो येलोइश और क्रिंकली लगते हैं. मीन्स येलोइश इसलिए क्योंकि वो बुक काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो उसके पेजेस येलोइश हो चुके हैं. और क्रिंकल मीन्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस बुक के पेजेस पे काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स और लाइंस आ चुके हैं. और ये उन्हें बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था कि उस बुक के जो वर्ड्स थे वो एकदम स्थिर थे. बिकॉज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस बुक के भी वर्ड्स ऐसे मूव करेंगे जैसे उनके टेलीविज़न स्क्रीन पे जब वो पढ़ते हैं तो मूव करते हैं. बट वो तो स्टिल थे, वो बिल्कुल शांत थे और वैसे ही थे. तो इस वजह से उन्हें ये बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था. इट वॉज़ ऑफुली फ़नी. ऑफुली मीन्स वेरी मच. सो उन्हें ये बहुत ज़्यादा फ़नी फील हो रहा था. And then, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब वे पेज को दोबारा से वापस टर्न करे तो उन्हें उस पेज पे सेम वही वर्ड्स मिल रहे थे जो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था. मीन्स सपोज लाइक उन्होंने फर्स्ट पेज को पढ़ा, फिर सेकेंड पेज को, और फिर थर्ड टर्न किया और थर्ड पेजेस को पढ़ा. फिर जब उन्होंने फर्स्ट पेज को वापस से टर्न बैक किया तो उन्हें जो फर्स्ट टाइम जो उन्होंने फर्स्ट पेज पे जो वर्ड्स देखे थे और पढ़े थे उन्हें सेम वही वर्ड्स वहाँ पे मिले. तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अमेज्ड कर रहा था. बिकॉज शायद उन्होंने पहली बार एक रियल बुक को देखा था. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. टॉमी कहता है कि what a waste, कितना वेस्ट है ये, कितना व्यर्थ है. जब तुम इस बुक को पूरी तरीके से पढ़ लोगी, you just throw it, इसे just फेंक देना. मुझे ऐसा लगता है, I guess means मुझे ऐसा लगता है. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. और वो बोलता है कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसके पास मतलब उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और इसमें और भी ज़्यादा बुक्स आ सकते हैं. मीन्स ये और भी ज़्यादा बुक्स को रखने के लिए कैपेबल है और ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं अपने टेली बुक्स को फेंकूँगा नहीं. सेम विथ माइन सेड मार्गी. और मार्गी बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. और वो मार्गी जो इस स्टोरी की प्रोटोगोनिस्ट है वो अभी 11 इयर्स की है और उसने इतने सारे टेली बुक्स को ना देखा है और ना ही पढ़ा है जितना टॉमी ने पढ़ा है, क्योंकि टॉमी उससे बड़ा है, वो 13 इयर्स का है. मीन्स उससे 2 इयर्स बड़ा है. सी शेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला. In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. और वो उसे पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिला, तो टॉमी उसे सिर्फ पॉइंट आउट करते हुए ऊपर की तरफ दिखाता है कि इन द एटिक. एटिक एक ऐसे स्पेस को बोलते हैं जो छत के ठीक नीचे बनाया जाता है किसी भी सामान को स्टोर करने के लिए. हमारे घर में भी ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें होंगे, आपने देखा होगा. एक भी रूम के एक कॉर्नर पे एक स्पेस बनाया जाता है सबसे ऊपर जहाँ पे बहुत सारे सामान को स्टोर किया जाता है. तो वो ऊपर की तरफ उसे पॉइंट आउट करते हुए दिखाता है कि इन द एटिक. वो देखता नहीं है बिकॉज़ वो बिज़ी है पढ़ने में. वो सिर्फ पॉइंट आउट करता है, बस दिखाता है ऊपर की तरफ. व्हाट्स इट अबाउट. और वो पूछती है कि ये किस चीज़ के बारे में, मीन्स ये बुक किस चीज़ के बारे में. तो आंसर करता है स्कूल. मीन्स ये बुक स्कूल के बारे में. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल,
What's there to write about school? I hate school. मार्गी स्कूल का नेम सुनते ही बहुत स्कॉर्नफुल हो जाती है। स्कॉर्नफुल मीन्स कभी अगर आपको किसी चीज़ कोई चीज़ बहुत यूजलेस फील होता है तो आप उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते और उसके प्रति एकदम घृणा दृष्टि से देखते हैं, जैसे वो एकदम व्यर्थ है, उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। तो वो स्कूल के बारे में भी ऐसा ही एक्सप्रेशन देती है और इसलिए वो स्कॉर्नफुल हो जाती है और बोलती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, और ऐसा क्या है स्कूल के बारे में जो स्कूल के बारे में बुक लिखा जाए, मीन्स ऐसा क्या है वहाँ पे जो स्कूल के बारे में लिखा जाए। आई हेट स्कूल, और वो बताती है कि वो स्कूल को जस्ट बहुत ज़्यादा नफरत करती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और मार्गी बताती है कि वो स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती थी बट अब तो वो पहले से भी ज़्यादा हेट करती थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, यहाँ मैकेनिकल टीचर रेफ़र करता है रोबोटिक टीचर को, तो उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वे उसे टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहे थे उससे और लेते आ रहे थे। हैड बिन मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मीन्स वो उसे टेस्ट लेते आ रहे थे, मीन्स काफ़ी दिनों से उसे टेस्ट लिए जा रहे थे और वो उसमें बहुत ज़्यादा बुरा ही परफॉर्म कर रही थी। शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स। सो लुक एट द स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंस। तो वो उसमें और ज़्यादा बुरा से बुरा ही परफॉर्म करती जा रही थी। And until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, और उसकी ये हालत देख के उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई और उन्होंने उसके सिर को सहलाया बहुत ही दुख की भावना से कि उनकी बेटी का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा गिर रहा था। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, उन्हें समझ आया कि मे बी शायद कुछ फॉल्ट इस टीचर में हो, बिकॉज़ ये रोबोट है और मशीन्स में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते ही हैं। सो उन्हें इस चीज़ के लिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools and dials and wires. और अब ये काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो बिल्कुल राउंड लिटिल मैन है, मतलब गोल मटोल इंसान होते हैं ना, छोटे से गोल से मटोल से मतलब थोड़े मोटे और छोटे से मतलब एकदम राउंड होंगे और तो मोटे हैं, इसी वजह से उनका फिगर बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा, इसलिए राउंड लिखा गया है। एंड लिटिल मैन मीन्स काफ़ी ज़्यादा उनका हाइट छोटा है। एंड विथ अ रेड फेस, और उनका फेस काफ़ी ज़्यादा रेडिश है और उनके पास एक बॉक्स है जो कि पूरा बॉक्स ही टूल्स से भरा हुआ है और वो डायल्स एंड वायर्स जैसे टूल्स से भरे हुए हैं वो बॉक्स। ये काउंटी इंस्पेक्टर है ना, वो आते हैं इंस्पेक्शन के लिए मैकेनिकल टीचर्स के। He smiled at Margie and gave her an apple, और वो मागी की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और उसे एक एप्पल देते हैं। Then took the teacher apart, और टीचर को साइड में ले जाते हैं। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, और मागी के पास ये होप था कि शायद वो ये नहीं जानते होंगे कि इसे सही कैसे किया जा सकता था। But he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. और उसे तो ये लग रहा था कि शायद ये नहीं जानते होंगे कि इसे कैसे ठीक किया जाता है, बट अफसोस की बात यह है कि उन्हें पता था कि इसे कैसे ठीक किया जाता है और 1 घंटे के अंदर ही वो फिर से वहीं था। कौन? इसके मैकेनिकल टीचर के साथ वो काउंटी इंस्पेक्टर। और मैकेनिकल टीचर जो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ब्लैक था और अगली था, और उसके पास एक बहुत ज़्यादा बड़ा बिग स्क्रीन था जिस पे सारे लेसन्स दिखते थे, शो होते थे और क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। That wasn't so bad, और ये इतना भी बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. और उसे ओवरऑल वो मैकेनिकल टीचर इतने भी बुरे नहीं लगते थे, सिर्फ उस पार्ट को छोड़ के, बिकॉज़
वो पार्ट जो था वो मागी सबसे ज़्यादा उसको हेट होता था, बिकॉज़ उसमें जो है ना उस एक स्लॉट था जिसमें वो होमवर्क को पुट करती थी और उसे टेस्ट पेपर मिलता था। तो वो जो पार्ट था ना मैकेनिकल टीचर का, वो उसे बहुत ज़्यादा वो उससे नफरत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। दे मेड हर लर्न when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। और उसे जो सारे टेस्ट पेपर्स होते थे उसे एक पंच कोड में लिखना होता था, और उसे ये चीज़ करना मीन्स पंच कोड में लिखना, ये चीज़ उसे सिखाया गया था जब वो 6 इयर्स की थी, और अब तो वो 11 इयर्स की है। तो उसे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि वो कैसे पंच कोड में अपने आंसर्स को लिखती है। और मैकेनिकल टीचर उसके वो मार्क्स को कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते। जैसे हम लोग कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देते तो हम लोग OMR सीट भरते हैं, तो सेम वही पंच कोड में कुछ ऐसा पंच कोड था जिसमें उसे सारे टेस्ट देने होते थे, और उसे ये चीज़ 6 इयर्स की जब थी तभी से उसे ये सिखाया गया था। और उसके मैकेनिकल टीचर तो इतने तेज़ी से, बिकॉज़ वो रोबोट है, वो मशीन है, तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता मार्क्स कैलकुलेट करने में, और इसे ये चीज़ सब बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और वो इस वजह से हेट करती थी। वी हैव completed just 4 para of this story, and we will just continue it in the next video. Thank you for watching. Stay tuned, stay connected.